اہم خبر آپ کو دیں، علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ۔ رامات گان میں میزائل گرنے سے 2 اسرائیلی ہلاک ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی حملوں میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ تل ابیب میں ٹرین اسٹیشن کو بھی نقصان پہنچا۔ شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے راکٹ حملے میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ تو علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ ہے یہ۔ رامات گان میں میزائل گرنے سے 2 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ مجموعی تعداد اسرائیلیوں کی اب 14 ہو چکی ہے ہلاک ہونے والوں کی۔ تل ابیب میں ٹرین اسٹیشن کو بھی نقصان پہنچا ہے، جبکہ خبر ایجنسی کا یہ بھی بتانا ہے کہ شمالی اسرائیل میں حزب اللہ کے راکٹ حملے میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں۔ خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے 3 ڈرونز مزید مار گرائے۔ سعودی وزارت دفاع کی جانب سے ایسا بتایا گیا کہ مشرقی ریجن میں 2 حملوں کا سامنا کیا۔ پہلے حملے میں الخرج میں بیلسٹک میزائل تباہ کیا۔ میزائل کا ملبہ پرنس سلطان ایئر بیس کے قریب گرا۔ دوسرے مرحلے میں 3 ڈرونز فضا میں تباہ کیے۔ تو سعودی عرب نے مزید 3 ڈرونز مار گرائے۔ مشرقی ریجن میں 2 حملوں کا سامنا کیا، ایسا بتایا گیا ہے سعودی وزارت دفاع کی جانب سے۔ پہلے حملے میں الخرج میں بیلسٹک میزائل تباہ کیا۔ میزائل کا ملبہ پرنس سلطان ایئر بیس کے قریب گرا۔ دوسرے حملے میں 3 ڈرونز فضا میں ہی تباہ کیے۔ بیروت کے وسطی حصے میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے کثیر المنزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ الجزیرہ کا یہ بتانا ہے کہ ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے، جانی نقصان کا بھی خدشہ ہے۔ اسرائیل نے پہلے بھی اس عمارت کو نشانہ بنایا تھا۔ الجزیرہ کا یہ بتانا ہے کہ بیروت کے وسطی حصے میں اسرائیلی طیاروں کی یہ بمباری ہوئی۔ بمباری سے کثیر المنزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ ملبہ ہٹانے کا کام بھی جاری ہے، جبکہ جانی نقصان کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے پہلے بھی اس عمارت کو نشانہ بنایا تھا۔ آبنۂ ہرمز کی بندش کے باعث آسٹریلیا کو بھی ایندھن کی قلت کا خدشہ۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کابینہ کا ورچوئل اجلاس طلب کر لیا۔ خبر ایجنسی کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ تیل کی سپلائی اور قیمتوں کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ تو آبنۂ ہرمز کی بندش کے باعث آسٹریلیا کو بھی ایندھن کی قلت کا خدشہ ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کابینہ کو ورچوئل اجلاس طلب کر لیا۔ لاریجانی کی شہادت سے نظام متاثر نہیں ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ کہا ایران کا نظام مضبوط شخصیات کی جانب سے کمزور نہیں ہوتا۔ نظام میں ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق کردار ادا کرتا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اس سے ایران کمزور نہیں ہوگا؟ شہداء کا بدلہ لینے کے لیے ایران کا اسرائیل پر بڑا حملہ۔ حملوں کی 61ویں لہر، کلسٹر اور خیبرون میں میزائلوں کی بارش کر دی۔ تل ابیب اور یروشلم میں متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ 2 اسرائیلی ہلاک، متعدد زخمی، کئی گاڑیاں تباہ، عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ تل ابیب میں ریل اسٹیشن بھی نشانہ بنا، ٹرین سروس معطل ہو گئی۔ خطے میں امریکی تنصیبات بھی پاسداران انقلاب کا ہدف۔ قطر میں ڈرون اور میزائل حملے، متحدہ عرب امارات کا بیلسٹک میزائل اور ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ابوظہبی میں میزائل کا ملبہ گرنے سے پاکستانی شہری جاں بحق ہو گیا۔ الفجیرہ بندرگاہ کے قریب ٹینکر پروجیکٹائل سے نشانہ بنا، آگ بھڑک اٹھی۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر 2 بار ڈرون اور راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ سعودی عرب نے چند گھنٹوں کے دوران 7 ڈرون مار گرائے۔ کویت کا 24 گھنٹوں میں 2 میزائل اور 13 ڈرونز کو روکنے کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان سے حزب اللہ نے بھی اسرائیلی شہروں پر درجنوں راکٹ برسا دیے۔ ادھر امریکی طیارہ بردار جہاز آگ لگنے کے بعد مرمت کے لیے بحیرہ احمر سے یونان روانہ ہو گیا۔ میڈیا کے مطابق ایران نے گزشتہ ہفتے جیرالڈ فورڈ کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ تہران سمیت متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے میزائل اہداف پر شدید بمباری کی گئی۔ آبنۂ ہرمز کے قریب ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ زیر زمین اور مضبوط اہداف کو تباہ کرنے والے 5000 پاؤنڈ وزنی ڈیپ پینیٹریٹرز بم برسائے گئے۔ اس سے پہلے امریکی اور اسرائیلی فوج نے بوشہر ایٹمی بجلی گھر کے قریب میزائل حملہ کیا۔ کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ IAEA کے مطابق ایٹمی بجلی گھر بھی محفوظ ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری، رہائشی عمارتوں پر بمباری سے مزید 6 شہری شہید ہو گئے۔ جنوبی لبنان میں 2 فوجی بھی صہیونی درندگی کا نشانہ بن گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق فوجیوں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ لبنان میں 24 گھنٹوں میں مزید 26 شہری شہید ہوئے۔ 2 مارچ سے اب تک شہداء کی تعداد 912 ہو گئی۔
ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को गुज़श्ता रोज हमले में निशाना बनाया। अमरीकी सदर का रद्द-ए-अमल, कहा अली लारिजानी ईरान में मुजाहिरीन के कत्लेआम के जिम्मेदार थे। ईरान जंग में मुकर्रर अहदाफ से आगे जा रहे हैं। ईरान की फौज और लीडरशिप सबको खत्म कर दिया। एयरफोर्स और नेवी भी तबाह कर दी। पीछे नहीं हटेंगे। ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है। ईरान की जोहरी तंज़ीमात पर हमला ना करते तो अब तक एटमी हथियार बना चुका होता। अमरीकी सदर का कहना था कि नेटो ईरान जंग में साथ ना दे कर अहमकाना गलती कर रहा है। आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत के लिए किसी मदद की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर ने एक बार फिर बरतानिया से भी नाराज़गी का इज़हार किया। अमरीकी सदर ट्रंप को बड़ा झटका, ईरान के खिलाफ जंग गले पड़ने लगी। इत्तेहादियों के बाद सरकारी अहदेदारों का भी अमरीकी सदर पर अदम एतमाद। पहला बड़ा इस्तीफा आ गया। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर मुस्ताफी हो गए। जो कैट ने सदर को भेजे गए अपने इस्तीफे में लिखा, ईरान से अमेरिका को फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं था। वाशिंगटन ने इसराइल और उसकी अमेरिका में ताकतवर लॉबी के दबाव में आकर जंग शुरू की। ज़मीर के मुताबिक ईरान के खिलाफ इस जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ईरान पर जंग मुसलत करने के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ें उठ रही हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी क़ौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ के डायरेक्टर के एहतजाजन मुस्ताफ़ी होने पर रद्द-ए-अमल, कहा यूरोप और अमरीका में ईरान पर हमलों को गैर मुंसिफ़ाना करार दिया जा रहा है। मज़ीद ममालिक को भी ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत करनी चाहिए। आलमी बरादरी को मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहद होना होगा। इस जंग के असरात दुनिया पर भी मुरतब हो रहे हैं। अब आपको बताएं, अरब और मुस्लिम वज़राए ख़ारिजा का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास में मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर गौर होगा। जंग बंदी और कशीदगी कम करने के इक़दाम ज़ेर गौर आएंगे। अरब और मुस्लिम ममालिक मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की कोशिश करेंगे। तवानाई सप्लाई और आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी भी एजेंडे में शामिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ममालिक सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश कर सकते हैं। अपडेट करें आपको, अरब और मुस्लिम वज़राए ख़ारिजा का हंगामी इजलास आज होगा। इजलास में मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर गौर होगा। जंग बंदी और कशीदगी कम करने के इक़दाम ज़ेर गौर आएंगे। अरब और मुस्लिम ममालिक मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की कोशिश करेंगे। तवानाई सप्लाई और आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी भी एजेंडे में शामिल। कुछ ममालिक सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश कर सकते हैं। ईरान की कौमी सलामती के मशीर अली लारिजानी और दीगर शहदा के नमाज जनाजा अली लारिजानी दीगर शहदा के ताबूत इनकलाब स्क्वायर पहुंचा दिए गए हैं। तेहरान में हज़ारों अफराद ताज़ियती जुलूस में शरीक हैं, खबर एजेंसी का ऐसा बताना है। और बमबारी के बावजूद हज़ारों ईरानी अपने लीडर को अलविदा कहने के लिए निकल हैं। तो ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ईरान की कौमी सलामती के मशीर अली लारिजानी और दीगर शहदा के नमाज जनाजा है और हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकले हैं। कि इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकाम इस कार्रवाई के नताइज का जायज़ा ले रहे हैं और ईरान से अभी तक इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट करता है ये, और इसराइली मीडिया कहता है कि हुकाम इस कार्रवाई के नताइज का जायज़ा ले रहे हैं। ईरान से अभी तक इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। जी हाँ, इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जबकि इसराइली मीडिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि हुकाम इस कार्रवाई के नताइज का जायजा ले रहे हैं। ईरान से अभी तक इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ईरान की कौमी सलामती के मशीर अली लारिजानी और दीगर शहदा के नमाज जनाजा अली लारिजानी दीगर शहदा के ताबूत इनकलाब स्क्वायर पहुंचा दिए गए हैं। तेहरान में हज़ारों अफराद ताज़ियती जुलूस में शरीक हैं, खबर एजेंसी का ऐसा बताना है। और बमबारी के बावजूद हज़ारों ईरानी अपने लीडर को अलविदा कहने के लिए निकल हैं। तो ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। ईरान की कौमी सलामती के मशीर अली लारिजानी और दीगर शहदा के नमाज जनाजा है और हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकले हैं। कि इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकाम इस कार्रवाई के नताइज का जायज़ा ले रहे हैं और ईरान से अभी तक इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट करता है ये, और इसराइली मीडिया कहता है कि हुकाम इस कार्रवाई के नताइज का जायज़ा ले रहे हैं। ईरान से अभी तक इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। जी हाँ, इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जबकि इसराइली मीडिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि हुकाम इस कार्रवाई के नताइज का जायजा ले रहे हैं।
ईरान से अभी तक इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है ये इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा, जबकि इसराइली मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि हुक्काम इस कार्रवाई के नताइज का जायजा ले रहे हैं। ईरान से अभी तक इस पेशरफ पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इस हवाले से आपको मजीद बताएं तो इसराइल का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा किया गया। अहम खबर आपको दें, अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। रमाद गान में मिसाइल गिरने से 2 इसराइली हलाक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 14 हो गई है। तल अबीब में ट्रेन स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। तो अली लारिजानी की शहादत के बाद ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला है ये। रमाद गान में मिसाइल गिरने से 2 इसराइली हलाक हुए हैं, जबकि मजमूई तादाद इसराइलियों की अब 14 हो चुकी है हलाक होने वालों की। तल अबीब में ट्रेन स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि खबर एजेंसी का यह भी बताना है कि शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में कई इमारतें तबाह हो गई हैं। खबर यह है कि सऊदी अरब ने 3 ड्रोन्स मजीद मार गिराए। सऊदी वजारत दिफा की जानिब से ऐसा बताया गया कि मशरक़ी रीजन में 2 हमलों का सामना किया। पहले हमले में अल-खरज में बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किया। मिसाइल का मलबा प्रिंस सुल्तान एयरबेस के करीब गिरा। दूसरे मरहले में 3 ड्रोन्स फ़ज़ा में तबाह किए। तो सऊदी अरब ने मजीद 3 ड्रोन्स मार गिराए। मशरक़ी रीजन में 2 हमलों का सामना किया, ऐसा बताया गया है सऊदी वजारत दिफा की जानिब से। पहले हमले में अल-खरज में बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किया। मिसाइल का मलबा प्रिंस सुल्तान एयरबेस के करीब गिरा। दूसरे हमले में 3 ड्रोन्स फ़ज़ा में ही तबाह किए। बैरूत के वस्ती हिस्से में इसराइली तैयारों की बमबारी से कसीरुल मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। अल जज़ीरा का यह बताना है कि मलबा हटाने का काम जारी है, जानी नुकसान का भी खदशा है। इसराइल ने पहले भी इस इमारत को निशाना बनाया था। अल जज़ीरा का यह बताना है कि बैरूत के वस्ती हिस्से में इसराइली तैयारों की बमबारी हुई। बमबारी से कसीरुल मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। मलबा हटाने का काम भी जारी है, जबकि जानी नुकसान का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इसराइल ने पहले भी इस इमारत को निशाना बनाया था। आबना हुर्मस की बंदिश के बायस ऑस्ट्रेलिया को भी ईंधन की किल्लत का खदशा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना का वर्चुअल इजलास तलब कर लिया। खबर एजेंसी की जानिब से ये बताया गया कि तेल की सप्लाई और कीमतों की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तो आबना हुर्मस की बंदिश के बायस ऑस्ट्रेलिया को भी ईंधन की किल्लत का खदशा है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को वर्चुअल इजलास तलब कर लिया। लारिजानी की शहादत से निज़ाम मुतासर नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा, ईरान का निज़ाम मजबूत शख्सियात के जाने से कमज़ोर नहीं होता। निज़ाम में हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक किरदार अदा करता है। अमरीकी और इसराइली ये क्यों नहीं समझते कि इससे ईरान कमज़ोर नहीं होगा। शोहदा का बदला लेने के लिए ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। हमलों की 61वीं लहर क्लस्टर और खैबरोन में मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अबीब और यरूशलेम में मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। 2 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी, कई गाड़ियां तबाह, इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। तल अबीब में रेल स्टेशन भी निशाना बना। ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी पासदारान इनकलाब का हदफ। कतर में ड्रोन और मिसाइल हमले। मुत्तहिदा अरब अमारात का बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तबाह करने का दावा। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से पाकिस्तानी शहरी जाबाक हो गया। अल फुजैरा बंदरगाह के करीब टैंकर प्रोजेक्टाइल से निशाना बना। आग भड़क उठी। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर 2 बार ड्रोन और रॉकेटों से हमला किया गया। सऊदी अरब ने चंद घंटों के दौरान 7 ड्रोन मार गिराए। कुवैत का 24 घंटों में 2 मिसाइल और 13 ड्रोन्स को रोकने का दावा। जनूबी लबनान से हिजबुल्लाह ने भी इसराइली शहरों पर दर्जनों रॉकेट बरसा दिए। उधर अमरीकी तैयारा बरदार जहाज आग लगने के बाद मुरम्मत के लिए बुहैरा अहमर से यूनान रवाना हो गया। और मीडिया के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता हफ्ते जेराल्ड फोर्ड को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया था। अमरीका और इसराइल की ईरान पर वहशियाना बमबारी जारी है। तेहरान समेत मुतादिद इलाकों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के मिसाइल अहदाफ पर शदीद बमबारी की गई। आबना हुर्मस के करीब ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया। ज़ेरे ज़मीन और मजबूत अहदाफ को तबाह करने वाले 5000 पाउंड वजनी डीप पेनिट्रेटर्स बम बरसाया गया। इससे पहले अमरीकी और इसराइली फौज ने बोशहर एटमी बिजली घर के करीब मिसाइल हमला किया। किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। IAEA के मुताबिक एटमी बिजली घर भी महफूज है।
اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری، رہائشی عمارتوں پر بمباری سے مزید 6 شہری شہید ہو گئے۔ جنوبی لبنان میں 2 فوجی بھی صہیونی درندگی کا نشانہ بن گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق فوجیوں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ لبنان میں 24 گھنٹوں میں مزید 26 شہری شہید ہوئے۔ 2 مارچ سے اب تک شہداء کی تعداد 912 ہو گئی۔